Hello students, Meenakshi Sinha is here. This is a question related with the trigonometry, height and distance. A man standing on the roof of a building of height 40 meter and looking towards the tower. एक टॉवर है, टॉवर को देख रहे, ये टॉवर है, इसको एक आदमी देख रहा है और कहाँ पे, खुद भी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, खुद भी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, यहाँ से खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग. दिस इज टॉवर, दिस इज बिल्डिंग. ठीक है. If the angle of elevation of the top of the tower is 60, अगर यहाँ से टॉप की ओर देख रहा है, एलिवेशन कर रहा है, this is by horizontal it is 60, and the angle of depression of the foot of the building, foot of the tower, foot of the tower. This is foot of the tower. This is 30. It means this angle. Angle of depression means looking towards the downward. नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसके फुट को देख रहा है, टावर के फुट को, that is 30, और towards the top देख रहा है तो that is angle of elevation, that is 60. Find the length of the tower. आपका height of the tower ये length देंगे. ये कितना दे रहा है? 14. This AB, this is 14. This is net height. It is to be obtained. Suppose this is h. h हमें निकालना है. Easy है. A B C D और this is E. Suppose point हमने नाम लिख दिया. So because this is horizontal, this is horizontal, this is a tower, this is the building. So BC will be equal to AE. It means BC will be equal to AE will be equal to x. Suppose हमने ये x मान लिया. This is also x. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है, because they both are क्षैतिज horizontal lines है. Okay, ठीक है. Now this angle 30 given to us. Okay, angle of depression of the foot दे रखा है. अब हमें हाइट निकालनी, h निकालनी है. अब ट्रायंगल दिस में ये भी x हो गया, ये भी आ गया. अब हमें ये पता है कि 60-30 में हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 90% उसमें टेंजेंट 60, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 का इस्तेमाल होता है और उनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए. इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल में 60 आ रहा है, इस ट्रायंगल में 30 आ रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं. टेंजेंट 60 अगर लेंगे तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल द बेस. ये परपेंडिकुलर DE जो होगा वो इस वाली में से इसको घटाने के बाद मिलेगा. DE विल बी इक्वल टू H माइनस AB. AB इज इक्वल टू EC. दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कुछ इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई है. तो दिस विल बी इक्वल टू दिस DE विल बी, इसमें हम DE विल बी इक्वल टू y माइनस 14. ओके मीटर. ओके, and tangent 60, this will be equal to DE perpendicular upon base AE. कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AED. इस ट्रायंगल में AED में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60. टेंजेंट 60 की वैल्यूज हमें पता होती है, √3 होती है. इसको लिख सकते हैं DE की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे क्या? H माइनस 14, H माइनस 14 और AE की जगह x लिख देंगे. अब x अगर पता चल जाए देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h. तो x को फाइंड करने के लिए दिस इज 60 इन दिस ट्रायंगल वी कैन टेक AEC इन ट्रायंगल AEC. Tangent of 60 or 30. This will be the tangent of 30. This is base and this is perpendicular. CE upon AE. CE upon AE. Tangent 30 किसके बराबर होता है? 1 upon √3. CE किसके बराबर है? CE. CE is nothing but equal to AB, that is 14, and AC is equal to X. AC is equal to X. From here,
x will be equal to 14 root 3. This is the value of x. This value will be put it, this is number equation number 1 and this is number 2. इसमें x की वैल्यू रख दे, h आ जाएगा. Putting this value in 1, we'll get root 3. This will be equal to h minus 14 upon x. 14 root 3. मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 14 into 3, this will be equal to h minus 14. This is equal to 42. 42 is equal to h minus 40. It means h will be equal to 42 minus plus with 14. That is equal to 6 and 5. 56. 56 meter will be the height of the building. इसमें एक एडिशन ये कर सकते हैं. You can also find the distance of the building between the building and tower. Tower का distance भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? तो h56 रखिए, यहाँ पे आएगा. मैं एडिशन ये इसको एडिशन बता रही हूँ. नाउ इधर कर देते हैं. Distance between building and tower is equal to BC. BC is equal to x. This will be can be obtained from here. Equation number 1. It means root 3 is equal to x is equal to 56. 56 minus 14 upon x. Okay. The x can also be obtained. X will be equal to 56 minus 40. That is 2 and 42 upon root 3. This already been calculated over here. 42 upon root 3. This is also the x. Same thing is. देखिए ये वही आएगी जो ये है. कितनी आएगी? इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, यही आएगा 40 रूट 3. उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, एक ही आंसर आएगा. ओके, एंजॉय कीजिए मैथ्स को. ये पजल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में डरने की कोई बात नहीं है. आपने मेरे चैनल को देखा, थैंक्स फॉर यू. और अगर पसंद आया होगा, समझ में आना चाहिए, कोशिश मैंने पूरी की है. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, और हमें मोटिवेट कीजिए. थैंक यू.